Yes. आपकी मीडियम क्या है, हिंदी या इंग्लिश? Sir, I prefer bilingual, but preferably English. English. Yes. Okay, please yourself. Sir, my name is Manmohan Singh, and I have come from Badaयूं, in Badaयूं district, which is in Uttar Pradesh. And sir, my schooling has been there for Chandoshi, which is a nearby town. And sir, after that, I have completed my graduation from Delhi University, Shahid Bhagat Singh College in Political Science honors. Sir, after that, I have also completed my post graduation in Political Science. And in my college, sir, I have participated in a number of extracurricular activities, such as I was the part of the theatre society of my college. And sir, my hobbies are I watch movies, and I am fitness enthusiast, sir. Okay. And you belong from Badaयूं. Tell me about Badaयूं. Sir, if we talk about the historical aspect of the Badaयूं, so it was known as the Vodhamayut in ancient India, and it was established in 220 BC. And it is said that theorists said that it was named after Ahir king Budh. And sir, it also has in medieval India. It also has connection with the Sultanate, where Iltutmish was the governor of Badaयूं, sir. Okay, tell me about Iltutmish. Sir, Iltutmish was the second leader of the Delhi Sultanate of slave dynasty, where he took over the throne after Qutbuddin Aibak. So he took the throne in 1210, but he was very great leader also, and he was known for the equality, giving equality to the women, where his daughter Razia Sultan became the first Sultan of the India, sir. Women Sultan. Yes, sir. Lady Sultan. Yes, sir, Lady Sultan. Okay, Manmohan, you have done your post graduation in political science. Yes, sir. Do you know about Arthashastra? Yes, sir. What's that? Sir, Arthashastra is the book written by the Kautilya. It is known as the statecraft given by the Chanakya, so that king should follow that statecraft. And it has Kautilya has given sir Saptanga theory, where it is known as 7 elements of the state, where number of things that given as Amatya, and which is known for the friend, and sir Durg, which is known for fort, and Kosh, which is known for fund, and other also. So it has been given, and he also applied this in the practical form on the Chandragupta Maurya also. Okay, can CAPF can be related to Saptang theory? Saptang theory. Sir, we can take the exam. We can relate it like in the form of India-Pakistan relationship. We talked about just Kautilya said that neighbor's neighbor will be should be your friend. Like India-Pakistan are enemies, and we are have very good friendship with Afghanistan. So we are applying this, and talking about the CAPF. The role of CAPF is also been there on the boundary of India-Pakistan also. I mean, any other form? Sir, I'm unable to. CAPF in Saptang? Sir, I'm unable to recall, sir. Okay, what should India adopt from UP? From UP. India should adopt it from UP. Okay, sir. Sir, I think the implementation of the resources in the rural areas and social cohesiveness also. Like we can say that in rural India, where we can compare that people live with very harmony in rural India, where UP has the largest population of for the rurals. So I can say that in metro cities also there should need to be increase the social cohesion. Okay. Do you read today's newspaper? No, sir, I could not, sir. Okay. Yesterday there was the second phase of Bihar election. Yes, sir. Tell me, what is the criteria of a legislative assembly? Suppose how कोई विधानसभा क्षेत्र को कैसे वो करते हैं बनाया, विधानसभा क्षेत्र को हम डिवाइड करेंगे तो किस बेस पे डिवाइड किया जाता है?
So there is a delimitation commission for that, which divides the country in constituencies. So accordingly, we divide the legislative assembly. जो कॉन्स्टिट्यूंसी बनेगी, चाहे वो Yes, sir. एमपी के लिए हो, चाहे एमएलए के लिए हो, उनका क्राइटेरिया क्या है? Sir, on the basis of population, sir. On the basis of population. Yes. You have appeared in this NDA, CPF, Civil, and CDS. Yes. What is your main aim? Sir, I have always wanted to be the part of defense services. So after my 12th, I applied for the NDA, but I could not clear the written part. And sir, after completing my graduation, I have appeared in CDS and I cleared it, but I got conferenced out. And I also appeared in civil services as I wanted to be selected as the IPS, but there also I could not clear the prelims exam. So now I'm in CAPF, where I'm aspiring to be an assistant commandant, sir. And your hobby is to watching movies. Yes, sir. And in recent era, we are seeing web series. Yes, sir. We can say extended part of the movies. Yes, sir. How web series are different from the movies? Yes, sir. Sir, if we talk about the web series, then it has, as you said, it has the extended part. So the entertainment purpose and the script, which has to be edited in the films, but there is the part for the director and writer also to explore the opportunities and to extend the story. So first part is that. And sir, talking about the customers, viewers, so there is the increased part, increased entertainment, and also sir, they can watch it at their home with the ease also. So less money investment and that much entertainment. And you have opted the CSF in your first choice. Yes, sir. Why so? Sir, as I said, I have completed my graduation from Delhi University. So this is the only force that I was very familiar with. The first point is that the familiarity, and sir, second part is the efficiency and professionalism shown by the CISF, as not a single incident has happened because of the mistake of the CISF, that it has doing very fabulous job. So I was impressed by it. Sir, the third part is civil police interaction, which is more in that, and as I participated in my theatre society, so I am very good at interacting with the people, sir. You have done your PG from Open University. What are the Open Universities? Sir, talking about the open university, there are two types of universities, open and regular university. In regular universities, there is a criteria for attendance where you have to present there physically so that you can get the education. But in open universities provide you the opportunity that you can earn the livelihood also, and if you want to aspire for the higher education, so that you can enroll yourself into the open universities also. So they also have the classes on the weekends, sir. मनमोहन Yes, sir. मनमोहन जी से ज़्यादा प्रभावित हो गए हैं क्या जी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जी से? कौन से एस्पेक्ट में सर? आप होंगे, जी, प्रभावित तो हैं क्या प्रभाव? सर. द फर्स्ट वी कैन से दैट you should speak only when you are aware of anything, and when it is like it is mattering, like if it is matter to speak, and speak important things only. And this other thing is, if anything is happening around you and everyone is involved in corruption or something, then you should maintain your decency in that also. आपने ओपन यूनिवर्सिटी की बात की, उत्तर प्रदेश से आप हैं। Yes. उत्तर प्रदेश में कोई ओपन यूनिवर्सिटी है कि नहीं? Sir, I am unaware of any. I don't. एक कोई है, एक है कौन है अगर आप? सर, आई गेस चौधरी चरण सिंह. आई एम नॉट. पॉलिटिकल साइंस आपका सब्जेक्ट है। यस सर. मार्क्स के इस सिद्धांत धर्म अफीम है, यस सर. सुने हैं? यस सर. इससे आप एग्री करते हैं कि नहीं? Yes, sir, I agree with that. कैसे? Sir, if we talk about the afim, which is a toxic element, which it gives you some dizziness or something. So religion also works like that. Like we can see in the present context also, there is the number of attacks and clash of civilization which is going on just because of the religion, sir.
like in one religion it is something, in one religion it has been given something, so there is the clash of civilization. And if we are talking about the we can if we talk about the religion, then we can interpret the people very easily by giving them, so that they will be in dizziness in the context of religion, and people can take advantage of that also. सपोज दैट आपसे कहा जाए कि धर्म के रूप में जो अफीम है Yes, वो दुनिया में या भारत के परिप्रेक्ष्य में कहें, भारत में शांति स्थापित करने के लिए yes, बहुत जरूरी है। yes sir. आप क्या कहें, सही है या गलत? सर मैं समझा नहीं, आप रिपीट करेंगे? धर्म जो है भारत में शांति की बनाए रखने के लिए, पीस के लिए यस सर, बहुत ज़्यादा आवश्यक है, यस सर, नेसेसिटी है। यस सर, इस बात से आप एग्री करते हैं? जी सर। जैसा कि हमारे संविधान में ये दिया गया हुआ है कि हम जो सेकुलरिज्म है सर, वो पॉजिटिव सेकुलरिज्म फॉलो करते हैं, जिसमें कि स्टेट को हर धर्म को बराबर समानता माननी चाहिए। तो अगर उसको हम पीस अगर मेंटेन करनी है, तो हमें सभी धर्मों को जैसे हमारे संविधान में लिखा है वैसे ट्रीट करना पड़ेगा इक्वली। तो सर मैं मानता हूँ, और रिलीजन एक ऐसी चीज़ है जिससे हर लोग मतलब रिलेट करते हैं। बहुत ही कम लोग होंगे जो नास्तिक होंगे इस देश में। तो मैं समझता हूँ सर बिल्कुल शांति बनाए रखने के लिए धर्म जरूर। ये तो एक अफीम है, अफीम तो नशा करते हैं। यस सर। ये तो हानिकारक ज़्यादा हो गया। नहीं सर, अगर जैसे ओपीएम सर कुछ मेडिसिन्स में भी यूज़ होता है, तो अगर हम लिमिटेड फॉर्म में लें या फिर कुछ किसी की देख रेख में लें, या वैसे ही रिलीजन का हिसाब है, अगर किसी की देख रेख में ले रहे हैं, किसी की इंटरप्रिटेशन सही में ले रहे हैं, मतलब जैसा कि जो गलत इंटरप्रिटेशन होता है सर जिहादिस्ट, यूज पर निर्भर करता है। हाँ किस तरीके से कर। ठीक है। भारत में दो प्रकार की विचारधाराएं होती हैं, एक लेफ्ट विंग, एक राइट विंग। यस सर। हम किसी व्यक्ति को कैसे डिफाइन करें कि ये लेफ्ट विंग का है या राइट विंग का है? यस सर। ऐसे तो कोई वैसे क्राइटेरिया नहीं है कि लेफ़्ट विंग और राइट विंग को कैसे करें, लेकिन सर जो मेरी समझ में आता है वो ये है मेरे विचारों में कि अगर आप राइट विंग को अगर किसी को कहना चाह रहे हैं, तो समवन हु इज़ अपनी कल्चर से जो बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, और जो दूसरों के कल्चर में या फिर सर जो प्रॉपर हमारी ऑर्थोडॉक्सी जो है, जो हम हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, जो कल्चरल हमारी चीज़ें हैं, हम उससे अगर हम दूसरी तरफ नहीं जाना चाहते हैं या बदलाव उनमें नहीं चाहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो राइट विंग है। और जबकि लेफ्ट विंग है वो बदलाव भी लाना चाहते हैं, और टूवर्ड्स वर्कर्स ऑल्सो, और थोड़े लिबरल उसमें आ जाते हैं। लेफ्ट लिबरल होता है, राइट से ज़्यादा, कहने का मतलब है यस सर। इन दोनों में अंतर ही नहीं होता। यस सर, मतलब वो चेंज को सर एक्सेप्ट कर सकते हैं। इनका मेन बेस क्या होता है दोनों का? रिलीजन? सर नहीं, रिलीजन तो नहीं, मतलब एक मतलब सभ्यता सर, जो कल्चरल एस्पेक्ट है। इनका दोनों का मेन बेस है। यस आप कर्मचारी? यस आप उत्तर प्रदेश से हैं। यस सर। अभी एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, डिफेंस कॉरिडोर। यस सर। ये क्या है? सर पहला डिफेंस कॉरिडोर बनाया जा रहा है लखनऊ आई गेस उत्तर प्रदेश में। तो सर उसमें डिफेंस इक्विपमेंट्स और डिफेंस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाएगा, और वहाँ पे वो बनाने की है जाकि डिफेंस रिलेटेड चीज़ें बढ़ेंगी और साथ में रोज़गार और तकनीकी भी। हम इंडिया में दो वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में यूज किए हैं, एक गणतंत्र, एक लोकतंत्र, Yes. डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यस सर। सर इफ़ वी टॉक अबाउट द डेमोक्रेसी, तो सर लोकतंत्र वो है जैसे कि अब्राहम लिंकन की भाषा में कहा गया है कि इट इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड टू द पीपल। सो अगर हम टर्म्स में देखें तो इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के तौर पर। और रिपब्लिकन सर अगर हम टर्म वाइज समझे तो रिपब्लिकन है कि आपका जो हेड ऑफ द स्टेट होना चाहिए वो इलेक्टेड होना चाहिए बाय द पीपल, नॉट सम हेरिडिटरी और समथिंग। हमारा जो हेड ऑफ स्टेट है वो तो हम चुनते नहीं। हाँ सर, हम ही चुनते पर इनडायरेक्टली चुनते पर। डायरेक्टली तो नहीं। पर रिपब्लिकन की उसमें सर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इनडायरेक्टली चुने या डायरेक्टली चुने, बस इलेक्टेड बाय द पीपल होना चाहिए। अच्छा, अभी रिसेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ बिल पास किए। यस सर। एक्ट बना दिया गया। यस। तो उसके अगेंस्ट कल राजस्थान ने भी उसके अगेंस्ट में एक कानून पारित किया है। यस सर। ठीक। और हम या कोई भी पढ़ता है तो अक्सर ये सुनते हैं कि केंद्र की जो योजनाएं केंद्र की कोई भी एक्ट को वो सुपरसीड नहीं कर सकते। यस सर। इसमें एक आर्टिकल बहुत चर्चा में आया है, जिसके आधार पर गवर्नमेंट माने स्टेट गवर्नमेंट ये सब रूल बना रहे हैं। कौन सा आर्टिकल? सर आर्टिकल 131 आई गेस, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। श्योर नहीं। यस।
क्या है उसमें प्रोविजन क्या है? सर अंडर आर्टिकल 131। नहीं, जो जैसे राजस्थान गवर्नमेंट ने बना दिया, अच्छा क्या ये राइट है स्टेट गवर्नमेंट को या नहीं? सर, गवर्नमेंट बना तो सकती है कोई भी रूल, लेकिन अल्टीमेटली फॉलो वही होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है, अगर कंकरेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट है तो। सपोज राजस्थान ने बनाया है, Yes, sir. सोच कर ही तो बनाया होगा। पर सर अल्टीमेटली इनवैलिड हो जाएगा अगर सुपरसीड करता है, तो सर सेंट्रल लॉ ही प्रिवेल करेगा, जैसा कोई कि ऐसा तरीका नहीं जिससे ये हो कि स्टेट में एक सेंटर का कानून लागू नहीं होगा, अगर स्टेट को उस चीज़ को उसके अगेंस्ट में है और उसने रूल बनाया है, कोई ऐसा तरीका नहीं जिसके आधार पर ये कहा जाए कि स्टेट का रूल सेंटर के रूल को सुपरसीड कर रहा हो। सर कंकरेंट लिस्ट में तो सर आई डोंट नो सर, आई एम नॉट अवेयर ऑफ। नहीं जानते। यस अच्छा, प्लेटो और अरस्तु, यस सर। इन दोनों ने एक आदर्श राज्य की संकल्पना की है, आइडियल स्टेट की बात करते हैं। यस इन दोनों के आइडियल स्टेट में मेन डिफरेंस क्या है? सर, अगर हम प्लेटो की बात करें तो प्लेटो ने जो आइडियल स्टेट की बात कही है उसमें उन्होंने बेस्ट चुनने की कोशिश करी है कि एक फिलोसोफर किंग होगा जिसको एक प्रॉपर एजुकेशन दी जाएगी और वो रूल करेगा। लेकिन सर अरिस्टोटल कहते हैं कि उस बेस्ट को अचीव करना बहुत मुश्किल है, मतलब वो फिर वो गोल्डन मीन का रास्ता देते हैं, मतलब मध्यस्थ रास्ता देते हैं, जिसके तहत आपको एक गुड अचीव करना पड़ेगा, बेस्ट अचीव नहीं किया जा सकता, और वो फिर लॉ की तरफ जाते हैं कि पॉलिटी ही बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कोई फिलोसोफर किंग हम नहीं चुन पाए। तो ये डिफरेंस है फिलोसोफर किंग का और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और पॉलिटी का। सपोज अभी फ्रांस काफी चर्चा में है, यस सर। वो भी अपने को सेक्युलर बोलता है, यस सर। भारत भी सेक्युलर है, यस लेकिन इन दोनों में अंतर है। यस सर। भारत के सेक्युलरिज्म और फ्रांस के सेक्युलरिज्म में क्या मेन डिफरेंस है? यस सर। सर जो हम सेकुलरिज्म जो यूज़ करते हैं भारत, वो सर पॉजिटिव सेकुलरिज्म है, जिसमें कि स्टेट इंटरफेयर ज़रूर करेगा रिलीजन में, लेकिन हर किसी को इक्वल ट्रीटमेंट देगा, हर रिलीजन को। लेकिन सर फ्रांस में ऐसा है कि नेगेटिव है, जो कि मैकियावेली की थॉट से शुरू हुआ था कि सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। वो किसी में दखलंदाजी, रिलीजन में दखलंदाजी नहीं करेंगे, उनका सिर्फ पॉलिटिक्स से मतलब है सर, वो नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ रिलीजन है सर, सेकुलरिज्म है सर। मनमोहन सिंह जी की एक किताब आई थी, काफी चर्चा में थी, अभी मनमोहन सिंह जी, यस सर। जिनका नाम बता सकते हैं? सर मनमोहन सिंह की या मनमोहन सिंह के ऊपर? मनमोहन सिंह जी की एक आई। सर आई एम जस्ट अवेयर ऑफ एन accidental prime minister, but that was written by Sanjay Baru, that was written by sir, he was some personal secretary or some secretary of PM, ex-PM then. टाई आपकी अच्छी है। Thank you sir. टाई कितने प्रकार से बांधते हैं? सर मुझे वैसे ज़्यादा अच्छे से बांधनी नहीं आती, तो मुझे तो एक ही तरीका आता जो मैंने यूट्यूब पे सीखा था सर। उसमें नोट्स होते हैं, कितने नोट्स हैं आपके टाई में? सर कितने नोट्स की टाई है आपकी? सर लेट मी काउंट, सर 4 आई गेस, श्योर? आई एम नॉट श्योर सर। ठीक है। आप में एक चीज़ जैसा मैं देख रहा हूँ, आपके लेफ्ट साइड में आपके जेब है, लेफ्ट साइड में आप अपने घड़ी बांध रखी है, राइट साइड में क्यों नहीं बांधते? राइट, चीज़ें राइट साइड में क्यों नहीं करते? यस सर। सर मैं अपना एग्जांपल, मतलब इस तरीके को हम 2 तरीके से बोल सकते हैं कि पहला तो सर जो जिस राइट हैंडेड अगर कोई है, तो अगर वो मैं घड़ी का अगर एग्जांपल दूं, तो अगर मैं राइट हैंड से लिखता हूं तो मेरे लिए मैं लिखते टाइम अपना वो हाथ उठाकर देख सकता हूं, तो इसलिए मेरे लिए लेफ़्ट ज़्यादा ठीक है कि मैं अगर राइट से लिख भी रहा हूं तो मैं अगर एग्ज़ाम दे रहा हूं तो टाइम देख पाऊँ। और अगर कोई चीज़ निकालनी है राइट हैंड हूँ तो मैं राइट हैंड मेरा पहले जाएगा, तो जेब पे इस पे निकालना आसानी होगी सर। सपोज मनमोहन, आपसे अभी रिसेंट में हरियाणा में एक केस हुआ, किसानों का आंदोलन हुआ, यस उस पर लाठीचार्ज वगैरह हुआ। सपोज आप वहाँ पर सीओ, यस सर। आप ही का टोटल अधिकार है, यस सर। किसान वहाँ से दिल्ली मार्च कर रहे हैं, ऊपर से प्रेशर है कि किसी भी तरीके से उनको रोकना है, यस सर। और वो आगे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यस सर। आपके रोकने पर बैरिकेडिंग तोड़ गए, आप क्या करेंगे? आपने हल्का बल प्रयोग किया लेकिन वो नहीं माने, यस सर। संख्या उनकी ज़्यादा है। यस सर। सर जैसे आपने कहा कि पहले बल प्रयोग किया, तो वैसे ही मैंने अनाउंसमेंट भी की होगी, या फिर मैं अनाउंसमेंट करूंगा आगे? बल प्रयोग आपने ठीक सर। सर मैं आगे अनाउंसमेंट करूंगा कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम अच्छे नहीं होंगे, आप लोग पीछे जाइए। आप अगर बात मान सकते हैं, उनका जो लीडर होगा मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा, अगर वो पीछे हटते हैं उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ कि उनकी जो डिमांड्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से
लॉ के अंदर ऊपर पहुंचाई जाएंगी, तो आप उन तरीके से मीटिंग अरेंज करवा देंगे आपकी जो भी हायर अथॉरिटीज़ हैं। बट अभी ये मूवमेंट ठीक नहीं है, आप पीछे हट जाइए। अगर वो फिर भी नहीं मानते हैं तो सर टीयर गैस और जो और हमारे पास थोड़े ऑपरेट चीज़ें होती हैं उनके तहत सर बल का प्रयोग करा जाएगा नीज़ के नीचे, या फिर जिनको उनको हार्म ना हो सर। Okay, Manmohan, Yes, sir. recently Manusmriti is in the news. Manusmriti. Manusmriti, yes sir. What's the Manusmriti? Yes, sir. Sir, Manusmriti is the Sanskrit text which was written from. It has been contexted that it was written in. It has been taken very previously, like in 2nd BC or something, and it has been considered. It has been considered as the first of the Sanskrit text which has been converted into English by William Jones. एंड सर इसमें बहुत सारी हमारी धर्म ड्यूटीज़ और सोशल वर्ण जो हैं उनके बारे में चीज़ें दी गई हैं, तो सर ये चीज़ें। Okay, thank you. Your formal interview is over. I will call you later. थैंक यू सर।